یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. 31 دسمبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. یوکرین کا پیوتن کی رہائش گاہ پر ڈرون حملے کے الزام سے انکار. زیلنسکی کا روس پر امن مذاکرات سبوتاژ کرنے کا الزام. If we are speaking, can we win without American support? No. ٹرمپ نیتن یاہو ملاقات میں حماس کو دھمکی. کہا کچھ ممالک آ کر آپ کو ختم کر دیں گے. If they don't disarm as they agreed to do, they agreed to it, and then they'll be held to pay for them. And we don't want that. We're not looking for that. But they have to disarm within a fairly short period of time. بنگلہ دیشی سیاست کی مضبوط آواز اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. جنوبی ایشیا میں اقتدار کی تبدیلیاں، سلگتی سرحدیں اور عوامی آوازیں. جانیے سال 2025 جنوبی ایشیا کے لیے کیسا رہا. 2025 جنوبی ایشیا میں حکومتوں، سرحدوں اور روزمرہ کی زندگی کے لیے ایک سخت امتحان ثابت ہوا. سیاسی طوفان، سرحدی تنازعات، جان لیوا آفات اور فوجی طاقت کا مظاہرہ اس سال سب کچھ ہوا. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے رحیم یار خان میں ملاقات. دفاعی تعاون بڑھانے کا اعادہ. جانیے 40 جنگیں دیکھنے کے باوجود سینئر صحافی جان سمپسن کو 2025 سب سے زیادہ پریشان کن سال کیوں لگا. یہ بھی جانیے کہ 100 بچوں کا قاتل جاوید اقبال محض شہرت کا بھوکا ذہنی مریض تھا یا ایک انتہائی سفاک سیریل کلر. ایول تو وہ تھا، لیکن اس ایول کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر ایک بہت ذہین آدمی بھی تھا. تو اس نے ایک بڑے طریقے سے میڈیا کو سوشلی بہت ہی مطلب پورے ملک کو اس نے ایک خاص ایک نیریٹو دیا جو لوگوں نے بائی کر لی. مزید یہ بھی کہ دہلی GB روڈ کی دلدل میں پھنسی کم عمر سیکس ورکرز کا استحصال کیسے کیا جاتا ہے. ہمارے ماں نے تھوڑی یہ پیدا کیا تھا کہ بھائی روٹی کھانا میں جاؤ اور دھندا کرو بول کے. چھوبڑا بینڈ کر دوں گا، ایسڈ پھینک دوں گا، بلیڈ مار دوں گا، دادا گیری سے باتیں. تو پولیس کے پاس کمپلیٹ کرنے گیا، میرے کو ہی اندر ڈال دیا. معجزے اور حادثے کا انتظار کرنے والے ہم وطنوں کو نیا سال مبارک. سنیے محمد حنیف کا نیا کالم. پاکستانی اداکار نعمان اعجاز کا شرپسند میں منفرد کردار. کہا یہ کردار 24 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے. دیکھا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. مجھ پہ انگلی اٹھانا اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے علاوہ مزید خبریں اور تجزیے بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے اس دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ یوکرین نے روسی صدر ولادیمیر پیوتن کی ایک ریاستی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ کیا ہے. زیلنسکی نے اس الزام کو روسی جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ماسکو اس طرح کے بے بنیاد دعووں کے ذریعے امن مذاکرات کو سبوتاژ کرنے اور یوکرین پر مزید حملوں کا جواز پیدا کرنا چاہتا ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے مطابق اتوار کی شب یوکرین نے 91 طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز روس کے شمال مغربی نووگورو کے علاقے میں واقع پیوتن کی ریاستی رہائش گاہ کی طرف روانہ کیے. روس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے تمام ڈرونز کو تباہ کر دیا اور کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا. لاروف نے کہا کہ اس واقعے کے بعد روس امن مذاکرات میں اپنی پوزیشن پر نظر ثانی کرے گا. تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ روس امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل سے نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتا. دوسری جانب یوکرینی صدر زیلنسکی نے پیر کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خبردار کیا کہ روس کے اس دعوے کے بعد یوکرین کو مزید حملوں کا سامنا ہو سکتا ہے.
उन्होंने कहा कि अब सबको चौकस रहना होगा। दारुल-हुकूमत कीव पर भी हमला किया जा सकता है। ज़ेलेंस्की का कहना था कि रूस अमन को एक नाकामी समझता है और जंग जारी रखने के लिए मुख्तलिफ बहाने तलाश कर रहा है। क्रेमलिन ने मंगल के रोज ऐलान किया कि वो मुबैना हमले के हवाले से कोई सबूत फराहम नहीं करेगा। ताहम उसने कहा कि आइंदा मुज़ाकरात में रूस अपना मौक़िफ़ मज़ीद सख्त करेगा। इसके जवाब में यूक्रेन के वज़ीर ख़ारिजा सबिहा ने आलमी बिरादरी से अपील की कि वो रूस के झूठे दावों पर यकीन ना करे। सबिहा के मुताबिक तकरीबन एक दिन गुजर जाने के बावजूद रूस कोई काबिल एतबार सबूत पेश करने में नाकाम रहा है, क्योंकि ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब इतवार को फ्लोरिडा में अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात हुए, जिनमें सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की ने जंग के खात्मे के लिए एक नज़र-ए-सानी शुदा अमन मंसूबे पर गुफ्तगू की। ज़ेलेंस्की ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुमकिन है ये जंग 2026 में ख़त्म हो जाए, ताहम यूक्रेन अमरीकी हिमायत के बगैर जंग नहीं जीत सकता। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि उन्हें सदर प्यूतन पर कोई एतमाद नहीं और उनके नज़दीक रूस यूक्रेन के लिए हकीकी अमन नहीं चाहता। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन को 15 साल के लिए सिक्योरिटी ज़मानतें देने की पेशकश की है। If we are speaking, can we win without American support? No. Because we can't. First, we will think about all the soldiers will think only about their families. And without American support, we can't defend this sky. सदर ट्रंप के मुताबिक इस पर मुआहिदा तकरीबन 95% मुकम्मल हो चुका है। ताहम इलाकाई तनाज़ात, रूस के ज़ेरे कब्जा ज़ापोरिया जौहरी प्लांट और दोनबास के मुस्तकबिल जैसे अहम मसाइल ताहाल हल तलब हैं। रूस इस वक्त दोनसक के तकरीबन 75% और लुहानसक के 99% हिस्से पर काबिज है। इसी दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को तस्दीक की कि उनकी सदर प्यूतन के साथ एक मस्बत टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। क्रेमलिन के मुशीर योरी ओशाकोव के मुताबिक इस काल में प्यूतन ने मुबैना ड्रोन हमले का जिक्र किया और कहा कि ये अमेरिका और यूक्रेन के मुज़ाकरात के फौरन बाद हुआ है। ओशाकोव के मुताबिक ट्रंप इस खबर पर गुस्से में थे। बातज़ा इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि मुमकिन है हमला हुआ ही ना हो, लेकिन प्यूतन ने उन्हें इस बारे में आगाह किया है और अमेरिका इस दावे के शवाहिद का जायजा लेगा। I heard about it this morning. You know who told me about it? President Putin told me about it. Early in the morning, he said he was attacked. That's no good. That's no good. Don't forget, you know, the Tomahawks. I stopped the Tomahawks. I didn't want that. Because we're talking about, you know, it's a delicate period of time. This is not the right time. It's one thing to be offensive, because they were offensive. It's another thing to attack his house. It's not the right time to do any of that, and can't do it. And I learned about it from President Putin today. I was very angry about it. मजमूई तौर पर ये सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों के बावजूद मैदान जंग और आलमी सियासत में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है, जबकि दोनों फरीक एक दूसरे पर अमन अमल को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात आयद कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कहा है कि अगर हमास ने जल्द हथियार ना डाले तो उसे सख्त नताइज का सामना करना होगा। ट्रंप के मुताबिक कई मुमालिक गजा जाकर हमास को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए इसराइल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप ने दावा किया कि इसराइल ने गजा अमन मंसूबे पर मुकम्मल अमल किया है, जबकि असल रुकावट दीगर फ्रीकैन हैं। And we'll see how that works out. Steve Witkoff and Jared Kushner will be in charge of that from our side. But if they don't disarm, as they agreed to do, they agreed to it, and then they'll be held to pay for them. And we don't want that. We're not looking for that. But they have to disarm within a fairly short period of time. याद रहे कि नवंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में क़याम अमन के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश करदा 20 नुकाती मंसूबे के हक में करारदाद मंजूर की थी। सलामती कौंसिल में मंजूर करदा करारदाद में गजा में मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज पर मुश्तमिल बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स का क़याम भी शामिल है। ताहम इस फोर्स में जिन ममालिक की अफवाज शामिल होंगी उनके नाम
अभी सामने नहीं आए हैं। अमन मंसूबे के दूसरे मरहले में हमास को गैर मुसल्लह करना, गजा में टेक्नोक्रेट हुकूमत का कयाम और इसराइली फौज का इनखला शामिल है। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि हथियार डालने का अमल फलस्तीनी रियासत की पेश रफ्त से मशरूत है। उधर पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने वाजे किया है कि पाकिस्तान गजा में किसी सूरत हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए फौज नहीं भेजेगा। उनके मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के तहत अमन कायम रखने और इंसानी मदद के लिए किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने 3500 पाकिस्तानी फौजी भेजने की खबरों को भी मुस्तरद किया है। सलामती कौंसिल की मंजूर शुदा करारदाद के तहत गजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के क़याम की तजवीज़ दी गई है। तहम इस फोर्स के मैंडेट और रुकन मुमालिक पर अब भी इख्तलाफात बरकरार हैं। तजज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान के लिए इस फोर्स में शमूलियत एक हसास और मुश्किल फैसला होगा। इब्रानी ज़बान के इसराइली अखबार इसराइल हायूम के मुताबिक तुर्की इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF का हिस्सा बनने के लिए मुसलसल दबाव डाल रहा है। अखबार के मुताबिक इस फोर्स के मैंडेट में हमास को गैर मुसल्लह करना भी होगा। अखबार में गुज़िश्ता हफ्ते शाया होने वाले मजमून में कहा गया है कि नेतन्याहू इस मामले में दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं कि तुर्की को इस फोर्स में शामिल नहीं होने दिया जाएगा और अमेरिका भी इसराइल के इस मौक़िफ़ के साथ है। अभी तक किसी भी मुल्क ने बाज़ाबिता तौर पर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होने का ऐलान नहीं किया है। Our Druze friends, and by the way, I think not only the Druze but other minorities, especially the Christians, should be protected as well in Syria and throughout the Middle East and in Nigeria. बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा मुल्क के दारुल हुकूमत ढाका में पार्लियामेंट की इमारत के करीब अदा की गई, जिसमें उनकी जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के रहनुमाओं और सपोर्टर्स ने मुल्क भर से कसीर तादाद में शिरकत की। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस और मुल्क की मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी खालिदा ज़िया के नमाज जनाजा में शरीक हुए। खालिदा ज़िया की मैयत को ज़ियाउद्दीन बाग में उनके शोहर ज़ियाउर रहमान की कब्र के पास दफन किया गया है। उन्होंने अपने शोहर ज़ियाउर रहमान की हलाकत के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की क़यादत संभाली थी और वो 4 दहाइयों तक बांग्लादेश की सियासत में सरगर्म रही। वाज़ेह है कि 25 दिसंबर को खालिदा ज़िया के बेटे तारिकुर रहमान 17 साल के बाद लंदन से वापस ढाका आए थे और उनके आने के 5 दिन के बाद उनकी अलील वालिदा इंतकाल कर गईं। खालिदा ज़िया सन 1991 में बांग्लादेश में 20 साल के बाद होने वाले इंतखाबात में कामयाबी के बाद मुल्क की पहली वज़ीर आज़म बनी थीं। 1991 में अपने पहले दौरे हुकूमत में खालिदा ज़िया की क़यादत में बांग्लादेश में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत मुतारिफ करवाया गया था। खालिदा ज़िया एक घरेलू खातून से बांग्लादेश की वज़ीर आज़म कैसे बनी, उनके सियासी सफ़र के बारे में जानिए हमारी इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। खालिदा ज़िया अपने शौहर ज़ियाउर रहमान के कत्ल के बाद सन 1983 में बांग्लादेश के सियासी मंजरनामे पर नजर आईं। सियासत में आने से पहले वो एक घरेलू खातून थीं। उनके घरेलू खातून से पार्टी रहनुमा बनने के सिर्फ 10 बरस के अंदर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इक़्तिदार में आ गई और वो बांग्लादेश की तारीख की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। खालिदा ज़िया के शौहर ज़ियाउर रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सदर और बानी थे। ज़ियाउर रहमान को 30 मई 1981 में एक नाकाम फौजी बगावत में हलाक कर दिया गया। इस कत्ल के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP बहरान का शिकार हो गई। कत्ल के 7 माह बाद पार्टी कारकुनान की दरख्वास्त पर खालिदा ज़िया ने BNP में शमूलियत इख्तियार की और पार्टी की क़यादत संभाली। वो 1983 में पार्टी की सीनियर नायब चेयरमैन और 1984 में बिला मुकाबला पार्टी चेयरमैन मुंतखब हुई। 1980 की दहाई में जब जनरल इरशाद इक़्तिदार में थे, खालिदा ज़िया को हुकूमत मुखालिफ तहरीक में हिस्सा लेने की वजह से 3 बार गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इरशाद हुकूमत के तहत 1986 के पार्लिमानी इलेक्शंस में हिस्सा ना लेकर अपनी तहरीक जारी रखी, जिसके नतीजे में उन्हें दीदा दलेर लीडर का लक़ब दिया गया। फरवरी 1991 में होने वाले इलेक्शंस में BNP इक़्तिदार में आई और खालिदा ज़िया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी।
15 फरवरी 1996 को होने वाले मुतनाज़ा इलेक्शंस के ज़रिए वो दोबारा वज़ीर आज़म बनी, लेकिन उसी पार्लियामेंट में निगरान हुकूमत के निज़ाम को मुतारिफ करवा कर उन्होंने चंद माह बाद इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले कर दिया। 1996 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद वो पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर बनी। 5 साल बाद उनकी पार्टी ने जमात इस्लामी समेत मजहबी बुनियादों पर कायम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शंस में हिस्सा लिया, जिसके बाद कई बरसों तक उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। इन इंतखाबात में कामयाबी के बाद खालिदा ज़िया दोबारा वज़ीर आज़म बनी। 5 साल बाद उनकी पार्टी ने जमात इस्लामी समेत मजहबी बुनियादों पर कायम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शंस में हिस्सा लिया, जिसके बाद कई बरसों तक उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। इन इंतखाबात में कामयाबी के बाद खालिदा ज़िया दोबारा वज़ीर आज़म बनी। मजमूई तौर पर वो 3 मरतबा बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रहीं। जब 2007 में बांग्लादेश में 111 के नाम से मशहूर फ़ौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत इक़्तिदार में आई, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह खालिदा ज़िया और उनकी पार्टी BNP को भी शदीद दबाव का सामना करना पड़ा। इस दौरान खालिदा ज़िया 1 साल से ज़्यादा अरसे तक जेल में रहीं। 2008 के नेशनल इलेक्शंस में शिकस्त के बाद खालिदा ज़िया 1 दहाई से ज़्यादा अरसे तक इक़्तिदार से बाहर रहीं। 2018 में ज़िया यतीम खाना ट्रस्ट और ज़िया चैरिटेबल ट्रस्ट करप्शन केस में कसूरवार करार दिए जाने के बाद खालिदा ज़िया को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। 2 साल से ज़्यादा अरसे तक जेल में रहने के बाद बीमारी की वजह से उन्हें अवामी लीग की हुकूमत के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत रिहा कर दिया गया। उम्र और बीमारी के बायस खालिदा ज़िया लंबे अरसे तक सियासत में गैर फ़ाल रहीं, लेकिन उन्हें बांग्लादेश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से हमेशा एहतराम की निगाह से देखा गया। सामीन, आज साल की आखिरी रात है। साल 2025 जनूबी एशिया के लिए गैर मामूली अहमियत का हामिल रहा, जहां एक जानिब इक़्तिदार की तब्दीलियां देखने में आईं तो दूसरी जानिब सरहदी कशीदगी, कुदरती आफात और सियासी बहरान खित्ते पर छाए रहे। मुख्तलिफ ममालिक में सियासी अदम इस्तेकाम, एहतजाजी तहरीकें और अवामी मुतालबात नुमाया रहे, जबकि कुदरती आफात ने लाखों अफराद की जिंदगियां भी मुतासर की। इस दौरान जनूबी एशिया के अवाम ने महंगाई, हुक्मरानी और बुनियादी हकूक के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद रखी और कई ममालिक में सियासी व समाजी मंजरनामा बदलता दिखाई दिया। खित्ते में होने वाली अहम पेशरफ्त, बड़े वाक़यात और फैसला कुन लम्हात पर मबनी ये सब कुछ देखिए हमारी इस खसूसी रिपोर्ट में। 2025 जनूबी एशिया में हुकूमतों, सरहदों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए एक सख्त इम्तिहान साबित हुआ। सियासी तूफ़ान, सरहदी तनाज़ात, जानलेवा आफात और फ़ौजी ताकत का मुज़ाहिरा इस साल सब कुछ हुआ। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी ने अवामी गुस्से को जन्म दिया। जनरेशन ज़ी ने करप्शन, अकरबा परवरी और डिजिटल सेंसरशिप के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज किया। झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक, जिसके बाद वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हुए और उस वक्त तारीख रकम हुई जब साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की नेपाल की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। बांग्लादेश में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को उनकी गैर मौजूदगी में इंसानियत के खिलाफ जराइम पर सजाए मौत सुनाई गई। वो इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करती हैं। एक तालिब इल्म रहनुमा पर फायरिंग के बाद उनकी हलाकत के नतीजे में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए और मीडिया दफातर को आग लगा दी गई। ये वाज़े करता है कि मुल्क अभी भी 2024 के मुजाहिरों के असरात से बाहर नहीं आया। अब अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस पर सबकी नज़रें हैं, जो इन हालात में मुल्क को फरवरी में होने वाले इंतखाबात की तरफ ले जा रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजर में बड़ी तब्दीलियां बहुत खामोशी से आई। आईनी तब्दीलियों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इख्तियारात बढ़ा दिए और उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के साथ उम्र भर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया। फौजी ताकत के मजबूत होने के बावजूद 2025 में दहशतगर्दी बढ़ी, जिससे पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आ गया। खुदकुश हमला आवरों ने मदरसा, स्कूल बस और फौजी काफिलों पर हमले किए, जिनमें बच्चे, मजहबी उलमा और फौजी एहलकार हलाक हुए। एक हैरानकुन वाक़े में बलोच शिदत पसंदों ने जाफर एक्सप्रेस के सैकड़ों मुसाफिरों को यरगमाल बनाया, जिसमें दर्जनों अफराद हलाक हुए। 2025 में पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी सरहदों पर तनाज़ात देखने को मिले। पहलगाम हमले के बाद इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने 1971 की जंग के बाद अब तक की सबसे शदीद शेलिंग की। ये कशीदगी क्रिकेट के मैदान तक भी पहुंच गई, जब इंडियन क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया।
مغربی محاذ پر افغانستان کے ساتھ خونریز جھڑپیں اور کابل پر فضائی حملوں کے بعد نازک جنگ بندی ہوئی۔ جب سرحد ایک جنگی محاذ میں بدل گئی تو دونوں طرف کی تجارت جو افغانستان کے لیے بہت اہم تھی رک گئی اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر شدت پسندوں کو پناہ دینے کے الزامات لگے۔ ڈیورنڈ لائن کے پار طالبان حکومت نے اپنی گرفت مضبوط کی، انٹرنیٹ بند کیا اور 679 یونیورسٹیوں کی کتابیں حذف کی، جن میں 140 خواتین کی تصنیفات شامل تھیں۔ سرعام پھانسی دوبارہ شروع ہونے کے باوجود روس پہلا ملک بنا جس نے طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔ سیاسی ہلچل کے علاوہ سانحے بھی رونما ہوئے۔ ہرات کے قریب ایک بس حادثے میں 79 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر بچے تھے، اور ڈھاکہ میں بنگلہ دیش ایئر فورس کا ایک لڑاکا طیارہ اسکول پر کریش کر گیا۔ 36 افراد ہلاک ہوئے، جس میں بھی زیادہ تر بچے تھے۔ سری لنکا میں 2 بس حادثات میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے اور سڑکوں کی حفاظت یا روڈ سیفٹی کے نظام میں خامیوں کا انکشاف ہوا۔ قدرت نے بھی 2025 میں بے رحمی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اور نیپال میں سیلاب، گلیشیئرز پھٹنا اور لینڈ سلائیڈنگ نے ہزاروں جانیں لیں، گھروں، سڑکوں اور فصلوں کو تباہ کیا اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ افغانستان 2 زلزلوں سے لرز اٹھا۔ ننگرہار میں پہلے زلزلے سے 2200 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ سری لنکا اب بھی سائیکلون دتوا سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگا رہا ہے، جس میں 600 افراد ہلاک ہوئے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے جدید F-16 طیارے، چینی اسٹیلتھ لڑاکا طیارے اور سب میرینز کے ساتھ ہتھیاروں کی قوت بڑھائی۔ باوجود اس کے کہ سری لنکا میں بجلی کا جدید نظام ہے، ایک بندر کی وجہ سے پورے ملک میں بجلی بند ہو گئی۔ یہ سال ٹینکوں کے بغیر بغاوتوں، بے رحم سیلابوں اور آواز بلند کرنے والے نوجوانوں کا سال تھا۔ 2025 نے 1 ارب سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رحیم یار خان میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیہ کے مطابق یہ ملاقات دونوں رہنماؤں کے درمیان اسلام آباد میں 26 دسمبر 2025 کو ہونے والی ملاقات کا تسلسل ہے۔ یاد رہے 26 دسمبر کو صدر امارات نے پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کیا تھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو ایک اسٹریٹجک اور باہمی فائدے پر مبنی معاشی شراکت داری میں تبدیل کرنا ان کی پختہ خواہش ہے۔ شہباز شریف کے مطابق دونوں ممالک کو تجارتی تعلقات میں نمایاں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ اسے مطلوبہ سطح تک لے جایا جا سکے۔ دونوں رہنماؤں نے آئی ٹی، توانائی، معدنیات و کان کنی اور دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی ہے۔ تقریباً 6 دہائیوں تک دنیا بھر میں 40 سے زائد جنگوں کی رپورٹنگ کرنے والے BBC کے سینئر صحافی جان سمپسن کا کہنا ہے کہ 2025 ان کے صحافتی کیریئر کا سب سے زیادہ پریشان کن سال ثابت ہوا ہے۔ ان کے مطابق اس کی وجہ صرف یوکرین، غزہ اور سوڈان میں جاری خونریز جنگیں نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ان میں سے بعض تنازعات عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ روس کے ساتھ جاری جنگ ایک عالمی تصادم میں بدل سکتی ہے۔ نیٹو ممالک روس کی جانب سے زیر سمندر کیبلز، سائبر حملوں اور دفاعی نظام کی نگرانی جیسے اقدامات پر شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں اور سوڈان کی خانہ جنگی میں لاکھوں افراد ہلاک یا بے گھر ہو چکے ہیں۔ تجزیے میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی یورپ سے بڑھتی ہوئی لا تعلقی، صدر ٹرمپ کی تنہائی پسند پالیسیوں اور روس اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ نے عالمی طاقتوں کے توازن کو خطرناک حد تک غیر مستحکم کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر یوکرین جنگ کسی کمزور معاہدے پر ختم ہوئی یا امریکہ نے یورپ سے کنارہ کشی اختیار کی تو 2026 میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مستقبل کی عالمی جنگ روایتی ایٹمی تصادم کی بجائے سفارتی دباؤ، علاقائی جنگوں، سائبر حملوں اور سیاسی اتحادوں کو توڑنے کی کوششوں پر مشتمل ہو سکتی ہے، جس کے آثار پہلے ہی نمایاں ہو چکے ہیں۔ سامعین، پاکستان کے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں 100 بچوں کے قتل کا دعویٰ کرنے والے جاوید اقبال کا کیس پاکستان کی تاریخ کے خوفناک ترین جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ دسمبر 1999 میں اس نے خود جنگ اخبار کے دفتر پہنچ کر گرفتاری دی اور اعتراف جرم کیا کہ اس نے کم عمر لاوارث بچوں کو اغوا کر کے قتل کیا اور لاشیں تیزاب میں تلف کر دیں۔ تحقیقات کے دوران اس کے گھر سے بچوں کے کپڑے، جوتے، تصاویر، ڈائریاں اور انسانی باقیات برآمد ہوئیں، جبکہ متعدد والدین نے اپنے لاپتہ بچوں کی اشیاء شناخت بھی کی۔
बाद अज़ा जावेद इकबाल अपने एतराफ से मुकर गया और इसे शोहरत हासिल करने की कोशिश करार दिया। ताहम अदालत ने शवाहिद की बुनियाद पर उसे और उसके साथियों को सजाएं सुनाई। केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हुआ तो चंद ही हफ्तों के अंदर अंदर यानी 16 मार्च 2000 को जज अल्लाह बख्श रांझा ने इस तारीखी केस का फैसला सुना दिया और मुल्जिम जावेद इकबाल और शरीक मुल्जिम साजिद को कसास के तहत सजा सुनाई गई, जिसमें हुक्म दिया गया कि मीनार पाकिस्तान के सामने मुतासिरा वालदैन की मौजूदगी में उनके जिस्म के 100 टुकड़े करके तेजाब में डालकर महलूल बना दिए जाएं। अदालती फैसले के मुताबिक ज्यादती का इल्जाम साबित नहीं हो सका। इस अदालती फैसले की जहां अमूमी तौर पर पजीराई हुई, वहीं कुछ वकला, इंसानी हुकूक की तंजीमों और चंद संजीदा हलकों ने तनकीद भी की और इस फैसले को खिलाफ आईन और कानून करार दिया। अदालती फैसले के बाद इस केस की अपील लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच के सामने लगी, लेकिन बेंच ने हुदूद ऑर्डिनेंस का हवाला देकर मामला वफाकी शरई अदालत को भेज दिया, जहां अभी केस की सुनवाई होनी थी कि जावेद इकबाल और उसका साथी साजिद एक ही जेल में और एक ही वक्त में अपने अपने सेल के अंदर मुर्दा पाए गए। जेल हुकाम इसे खुदकुशी करार देते हैं, लेकिन इस केस के साथ मुंसलिक पुरअसरारियत कई सवालात छोड़ गई। ये केस आज भी इस सवाल के साथ याद रखा जाता है कि जावेद इकबाल महज शोहरत का भूखा जहनी मरीज था या एक इंतहाई सफाक सीरियल किलर। ईवल तो वो था, लेकिन उस ईवल को समझने के लिए उसके अंदर एक बहुत ज़हीन आदमी भी था। तो उसने एक बड़े तरीके से मीडिया को, सोशली बहुत ही मतलब पूरे मुल्क को उसने एक खास एक नैरेटिव दिया जो लोगों ने बाय कर लिया। उसके बाद उसका कोर्ट में केस चला, एक सजा दी गई, सज़ाए मौत उसको और साजिद को। He should be strangulated as he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302 APPC. After that, his dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his text. जब ये मुकदमा इंटरेस्ट किया गया उस वक़्त फिज़ा बड़ी मुख्तलिफ थी। जनरल मुशर्रफ की नई नई हुकूमत आई हुई थी, आते ही ये वाक़या हो गया तो अखबारें बड़ी पड़ी थी। मिनिमम पॉसिबल टाइम में 100 कितने गवाह थे और कितने 300 कितने पेज के बयान थे और जजमेंट थी। उसको तो फैसला सुन के भी कोई परेशानी नहीं। मैंने जावेद इकबाल का चेहरा देखा कि इसके बाद इसका मुंह चेहरा लटक जाएगा, तो उसने बड़ा स्माइल दे दिया मुझे देख के और इस अंदाज में दे शुक्रिया। फिर वो मेरे पास से गुजरा और मुझे गले मिला जाते हुए और फिर मुझे कहता आपका बहुत बहुत मैं मशकूर हूँ। जावेद इकबाल को उसके डेथ सेल में मिला, फांसी घाट में मिला, तो जिन चीज़ों ने मुझे हैरान किया, पहली बात ये कि वो वहाँ ज़मीन पर बैठा, गद्दे पे बैठा था, उसके हाथ में एक तस्बीह थी, सब्ज़ रंग की तस्बीह, और वो तस्बीह फेर रहा, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। दूसरा, वो इतना पुरसकून था कि मतलब है मैंने ज़िंदगी में बहुत कम लोग इतने पीसफुल, पुरसकून देखे, रिलैक्स था। उन्होंने कहा कि जी ये जो ऊपर ओढ़ने वाली चादरें हैं ये गले में लिपेट के और ऊपर खिड़की और जो जंगला होता है ऊपर लगा के और नीचे अपने को झटका दिया। मैंने कहा तो पॉसिबल ही नहीं। पहली बात ये कि वो ज़हनी कैफियत ऐसी उसकी नहीं थी कि वो ऐसा प्लान करता। नंबर 2 ये कहना कि जी उसने छत से रस्सी लगा के अपने आप को हैंग कर दिया। वो उस कमरे में मैं मौजूद था, वो कमरा कोई 20-25 फुट हायर सीलिंग्स थी, वहाँ पर ये मुमकिन नहीं है। तीसरी बात ये कि वो जो उसका दोस्त था या जो उसका कंप्लिस था साथ वाले कमरे में, 2 लोगों का एक ही रात एक ही वक्त खुदकुशी करना, इसके मतलब चांसेस बहुत कम है। भारत के सबसे बड़े रेड लाइट इलाकों में शुमार होने वाली दिल्ली की जीबी रोड में मैसूर खवातीन और कम उम्र लड़कियों की जिंदगी तशद्दुद और बेबसी का नमूना बन चुकी है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ तकरीबन 2500 खवातीन मुकीम हैं, जिन्हें रोजाना 12 से 15 ग्राहकों को संभालने पर मजबूर किया जाता है।
रुखसाना और ज्योति जैसी मुतासरा खवातीन की कहानियां इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को बेनकाब करती हैं। रुखसाना को महज 13 साल की उम्र में उनके शोहर ने यहां फरोख्त कर दिया था, जहां उन्हें न सिर्फ नशे की लत लगाई गई बल्कि 14 सालों में 20 से जायद मर्तबा इसकाते हमल के कर्ब से भी गुजरना पड़ा। इसी तरह ज्योति को मुलाजमत का झांसा देकर यहां लाया गया और हमल के आखिरी माह तक उनसे काम लिया गया। सरकारी व समाजी अदादो शुमार के मुताबिक भारत में सेक्स वर्कर्स की सरकारी तादाद तकरीबन 10 लाख है, जबकि गैर सरकारी तंजीमें इसे 30 लाख बताती हैं। सन 2023 में भारत भर से 3,24,000 से ज्यादा खवातीन लापता हुई, जिनमें से हजारों को जिनसी तिजारत के लिए स्मगल किया गया। एक हालिया मुताले के मुताबिक 50% सेक्स वर्कर्स जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद का शिकार हो चुकी हैं। अगरचे 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एक पेशा तस्लीम करते हुए इसे वकार देने की बात की थी, लेकिन जमीनी हकाइक ताहाल तल्ख हैं। समाजी तंजीमें हुकूमत के मिशन शक्ति जैसे प्रोग्रामों को नाकाफी करार देती हैं, क्योंकि इनमें मुतासरा खवातीन की तवील मुद्दती बहाली, बच्चों की परवरिश और मुतबादिल रोजगार के ठोस मंसूबे मौजूद नहीं हैं। हम भी आप भी जिंदगी में किसी न किसी मौजज़े के इंतजार में रहते हैं। इसी ख्याल के गिर्द घूमता है मारूफ अदीब व तज्ज़ियाकार मोहम्मद हनीफ का ताज़ा वीलॉग, जिसमें वो इमरान खान से जुड़े मौजज़े और हादसे के तस्वुर का जायजा लेते हैं। वीलॉग में मोहम्मद हनीफ इमरान खान की सियासी जिंदगी के अहम मोड़, गैर मुतवक्के वाक़यात और अवामी उम्मीदों का तज्ज़िया करते हुए सवाल उठाते हैं कि ये सब मौजज़े थे या हादसात, और इनका पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर पड़ा। आप भी सुनिए। हम भी आप भी जिंदगी में किसी न किसी मौजज़े के इंतज़ार में रहते हैं। इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से पहले धरने के दिन थे। मैं उनके एक इंतहाई करीबी अजीज़ के साथ उनके काफ़िले में एक गाड़ी में फंस गया। वक्त गुजारने के लिए पूछा कि मुल्क में मसले बहुत हैं, अगर इमरान खान वाकई वज़ीर आज़म बन गए तो उनके पास प्लान क्या है। उन्होंने बताया कि इमरान खान एक करिश्माती शख्सियत है और ये बात उनके दुश्मन भी मानते हैं, तो जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो मुल्क में एक मौजज़ा होगा। मैंने कहा मसलन। उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में से तेल निकल आएगा और पाकिस्तान सऊदी अरब या इमारात जैसा एक अमीर मुल्क बन जाएगा और फिर सारे मसले ख़त्म। मौजज़ा ये हुआ कि इमरान खान वज़ीर आज़म बने। उन्होंने एक दफ़ा समंदर से गैस निकलने की नवीद भी सुनाई। गैस तो नहीं निकली, लेकिन उनके अपने करिश्माती गुब्बारे से हवा निकलती गई या निकाल दी गई। जिस तरह आजकल कौम बटी हुई है, इसी तरह मेरे जैसे पेशावर भाषण देने वाले भी बटे हुए हैं। मैंने अपने एक साथी सहाफ़ी से कहा कि इमरान खान को सज़ा तो अब हो चुकी, और अगर बाकी केसों में भी सज़ा हो गई तो वो 2-4 सदियाँ जेल में गुजारेंगे। अब एक सज़ा याफ्ता सियासी कैदी पर मीडिया पर बैठकर दुर्रे मारने का क्या मतलब, जो पहले ही डाउन हो उसे किक करने का क्या फ़ायदा। उन्होंने आगे से एक जलावतन पाकिस्तानी शायर का कॉल सुना दिया कि इस्टेब्लिशमेंट जो इमरान खान के साथ कर रही है वो गलत है, लेकिन इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो सही है। उधर हमारे पीटीआई के प्यारे किसी हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि अब तो हादसे का मुतालबा भी करने लगे हैं। मुझसे पूछा गया कि अब क्या होगा। मैंने कहा आप खुद पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप बताएं। उन्होंने कहा कि इस कौम के साथ पहले भी हादसे हुए हैं। मैंने कहा कौन से हादसे। उन्होंने कहा भुट्टो, जनरल ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो सब हादसों में गए। मैंने अर्ज़ किया कि सुप्रीम कोर्ट से दी गई भुट्टो की फांसी तो हादसा नहीं थी, लेकिन ना उसके बाद कुछ बदला, ना ज़ियाउल हक के बाद, ना बेनज़ीर भुट्टो के बाद। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हादसे के बाद एक मौजज़ा होगा। अब एक मौजज़ा तो हम सब देख सकते हैं कि सब्जियों और फलों की रेहड़ियों पर हमारे हुक्मरानों ने अपनी तस्वीरों वाले पैनाफ्लेक्स लगवा दिए हैं, और बाकी हादसों से हमें अल्लाह बचाए। लेकिन मौजज़े और हादसे का इंतज़ार करने वाले हमवतनों को नया साल मुबारक। पाकिस्तानी अदाकार नौमान एजाज ने हालिया ड्रामा सीरियल शरपसंद में एक बिल्कुल मुख्तलिफ और गैर रिवायती किरदार अदा किया है। उमैर अलवी और मोहम्मद नबील को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस किरदार की पेचीदगी, नफ्सियाती गहराई और समाजी मानवीयत ने उन्हें इस पेशकश को कबूल करने पर आमादा किया। नौमान एजाज के मुताबिक उन्होंने किरदार को हकीकत के करीब लाने के लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज, मुकालमे के उतार चढ़ाव और खामोशी के लम्हात पर खास तवज्जो दी।
उनका कहना था कि वो सिर्फ स्क्रिप्ट तक महदूद नहीं रहे, बल्कि किरदारों की दाखिली कशमकश और पस मंजर को खुद भी डेवलप किया ताकि नाजरीन इससे जुड़ सकें। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुनिए खुद उनकी जुबानी। मैं ये समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दुश्मन इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी, ठीक है। जितने ज़्यादा दुश्मन हो अल्लाह पाक उतनी ही आपको कामयाबियाँ देता है। देखा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। मुझ पे उंगली उठाना इतना आसान काम नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, हाँ? तुम मुझे डराओगे, धमकाओगे, मुझे बदनाम करोगे और मैं ये घर छोड़ के चले जाऊंगी? तुम्हारी भूल। अरे वो तो नजर ही आ रहा है। पाकिस्तानी ड्रामों में लगाई बुझाई वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं ये ख़वातीन के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन शरपसंद में ये काम आप कर रहे हैं। जब आपको ये किरदार ऑफर हुआ तो आपने क्या सोच के हामी भरी? ओह उमैर भाई, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारी सोसाइटी में यही होता है और उमूमी तौर पे स्पेशली ड्रामों में तो यही देखा गया। यही इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था। जब एहसन तारिश साहब ने मेरे साथ डिस्कस किया कि इस तरह का किरदार है और ये है और वो है और वो यू नो शरपसंद है मोहल्ले में हर चीज़ में, आई हैव एक्चुअली came across very little number of स्पेशली मर्दाना जेंडर इस तरह की हरकतें करते हुए। सो मुझे कोई ऐसा मिला नहीं, लेकिन फिर उसके बाद जब कर ही लिया तो आज मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ नीचे तो लोगों ने लिखा हुआ है कि मेरे मामू ऐसे थे, मेरे चचा ऐसे थे, मेरे खालू ऐसे हैं, मेरे ऐसे। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रीक भी औरतों वाली मर्दों में है और होती है, डेफिनेटली होती होगी। हाँ, इट वॉज डिफ़िकल्ट, it was very unusual, it was very challenging as well. Initially, even the producer said कि the twitching of your eye, don't do it. ऐसे भी मुझे कई दफ़ा कह जाते थे मत करें, कम कर लें। मैं कह यार I have seen people doing it. ये कुछ लोगों में एक हो जाता है, ये ना एक आधा मसल आपका ऐसा हो जाता है जो आपको या एक आदत डेवलप हो जाती है आपकी। एंड ग्रेटफुल टू एहसन, ग्रेटफुल टू द प्रोड्यूसर एज वेल। एक दो एपिसोड्स के बाद they didn't say a single word and I was given the leverage of whatever comes in my mind or whatever I want to do in this particular character, I've been doing it. So मुझे ये लगता है कि मैं या ये किरदार 24 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मैंने देखा है कि ये 24 करोड़ ऐसे ही हैं। हमारे कॉलो फेल में तजाद है, हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और हम हैं ऐसे। कहने का मकसद है कि ये इसी सोसाइटी का कैरेक्टर है एंड माई ऑडियंस इज सेइंग दैट आई एम जस्टिफाइंग वट एवर आई एम डूइंग। आपने स्टार्ट जो था फिल्मों से लिया, लेकिन आप टीवी पे आ गए और टीवी पे आप आने के बाद उसके बाद फिर आपने रामचंद पाकिस्तानी और विरसा की। उमर भाई, आई फील मैं फिल्म का एक्टर ही नहीं हूँ। मुझे बेइंतहा फिल्में ऑफर हुई, आई नेवर डिड इट, आई सेड नो टू इट एंड द रीज़न वाज के आई नेवर फेल्ट कंफर्टेबल ऑन दैट बिग स्क्रीन। शायद मुझे लगा कि मैं शायद फिल्म का एक्टर नहीं हूँ और मुझे ये भी लगा कि इस मुल्क में फ़िल्म नहीं बन रही है जिसके लिए मैं काम करूं। एक कामयाब सक्सेसफुल करियर इसमें टेलीविज़न पे रखा है तो अपने नाम के साथ बट्टा ज़रूर लगाना है, धब्बा ज़रूर लगाना है, एक ब्लडी फ्लॉप फिल्म दे के मार्केट में। सो व्हाट्स द पॉइंट। हाँ, लगा कि हाँ भाई ये वाकई फ़िल्म ऐसी है कि अगर कर ली जाए तो नेक नामी होगी, तो दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन वही वाली बात है ना, पाकिस्तान में आज भी अभी भी फिल्म एक जुआ है, हो गया, नहीं हुआ। सो और फिर मैं ये भी समझता हूँ वी डोंट हैव फिल्म मेकर्स, सच्ची और ईमानिया बात है, एंड वी डोंट हैव फिल्म डायरेक्टर्स एज वेल एंड वी डोंट हैव फिल्म राइटर्स एज वेल बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इट इज़। सो बस ये है कि अपने अपने शौक़ में अपने अपने खर्चे पे सब लगे हुए हैं, तो लगे रहो मुन्ना भाई, अल्लाह पाक सबको कामयाबियाँ दे। आपने सीनियर्स को भी काम करते हुए देखा, आप जूनियर्स के साथ भी काम करें। नई जनरेशन में ऐसी क्या खूबियाँ हैं और ऐसी क्या खामियाँ हैं जो आपको नज़र आती हैं? देखें, नई जनरेशन में
नई जनरेशन को जो मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना इस काम से, वो एक्सपोजर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो कि सोशल मीडिया का एक्सपोजर है। मैं बल्कि अक्सर यंगस्टर्स को कहता भी हूँ कि क्योंकि सोशल मीडिया से इजी मनी हो गया है, इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, आई डोंट वांट टू एलैबोरेट इट। तो हमारे आज वो क्यूरियोसिटी एक्टर को लेके सोसाइटी में कम हो गई है, क्योंकि सबको पता है ये क्या खाता है, ये क्या पहनता है, ये कब उठता है, ये कब सोता है। वो तो लगा रहा है अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए एक्टर, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज कर रहा है। तो जब इतना एक्सपोज कर देगा तो उसका स्टारडम या उसको जानने की क्यूरियोसिटी तो ख़त्म हो जाएगी, उसको देखने की क्यूरियोसिटी तो ख़त्म हो जाएगी। जब वो हर सफ़े पे नज़र आएगा, जब वो हर नुक्कड़ पे खड़ा नज़र आएगा, सो दे आर नॉट फोकसिंग द स्किल, द क्राफ्ट, दे आर नॉट पॉलिशिंग देयर क्राफ्ट, दे आर पॉलिशिंग देम सेल्फ। सो स्टॉप पॉलिशिंग योर सेल्फ, पॉलिश द क्राफ्ट विच यू आर हेयर फॉर। बट अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया ने सब बर्बाद करके रख दिया। आजकल टीवी पे आपके साथी अदाकार जो हैं बैठकर एक्टर्स के ऊपर, ड्रामों के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये अच्छी चीज़ है या नहीं होनी चाहिए? ये करने की ज़रूरत क्या है? आपको पता है आप को एक टूटी हुई पिच दी जाती है, आपके पास कई दफ़ा सारा दिन गुस्ल खाना भी नहीं होता, और जो होता है वो इस्तेमाल के काबिल भी नहीं होता। आपको हार्डकोर रियलिटीज़ पता हैं, आपको पता है कि एक सीरियल कितने महीनों पे मुहित हो गया है उसका मुकम्मल होना, जिसमें आप फूलते भी हैं, कम भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, सेहतयाब भी होते हैं, भूलते भी हैं, बहुत कुछ होता है। सो आपको पता है कि क्या हम कैसे काम कर रहे हैं, फिर आप उस नस्ल, उस जनरेशन का मजाक भी उड़ा रहे हैं जो नई यूथ है, आप उनको डिस्करेज भी कर रहे हैं। सो व्हाट आर यू डूइंग? आपको पता है यूथ का की कू कुछ बदलने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो जुमला सेंस बना रहा है या वो नहीं बना रहा। वो जो नया आया है या जो एक्टर है उसको इजाज़त नहीं है। कितने क्वालिफाइड एडीज़ हैं आपके पास जो वाकई, कितने क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हैं आपके पास जो सही मानों में स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ सकते। 99% हैं वो जो सही मानों में स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ सकते। वो जो गिनती के 3, 4, 5 डायरेक्टर हैं, सारा यूथ उनके साथ तो नहीं काम कर सकते। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक्सपीरियंस, नॉट द ग्रोथ ऑफ वर्क एंड द वॉल्यूम ऑफ वर्क, यहाँ ईयर्स ऑफ वर्क के अकॉर्डिंगली आपको सीनियर समझते हैं कि ये लेजेंड है। हम उस एक्टर की ग्रोथ रोक देते हैं, उस यंगस्टर की, उसको लेजेंड कह के दूसरे ही ड्रामे में कि ये तो लेजेंडरी एक्टर है, ये तो ये है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हमें चीज़ों को अव्वल तो इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं होने चाहिए, लेकिन ठीक है, उन्होंने भी वो जो लोग उस प्रोग्राम का हिस्सा हैं या इस तरह के प्रोग्रामों का हिस्सा हैं, सब ने अपने घरों के चूल्हे जलाने हैं और मजबूरी आपसे बहुत कुछ करवा देती है। तो अल्लाह पाक उनकी मजबूरियों को आसान करे। मेरी तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मजबूरियों को आसान करे और अल्लाह पाक उनको हदायत अता फरमाए। इससे अलावा मैं नहीं कुछ कह सकता। तो कभी कभी आपकी पुरानी क्लिप्स जो हैं जिसमें आप किसी के बारे में कमेंट दे रहे हैं वो वायरल हो जाती हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम बात सुनते हैं और उस पर धावा बोल देते हैं, और जिसने कही होती है बस फिर हम उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। हम ये नहीं देखते कि उस बात का मकसद क्या था, क्या इस बात पे कितनी बात हो सकती है, क्योंकि हर बात पे बात हो सकती है। आप किसी की किरदार कशी नहीं कर सकते। अगर कोई बात किसी ने कह दी है किसी स्टेट ऑफ माइंड में, सार्केस्टिकली कह दी है या सीरियसली कही है, पहले तो यही हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरी मोस्टली बातें सार्केस्टिक होती हैं। सो वो सार्केस्टिकली अगर कह दिया और वो ये समझ रहे हैं कि वो मैंने कही है या वो मैं कह रहा हूँ या वो मेरा ओपिनियन है, तो आई एम सॉरी टू से फिर समझने वाले का फॉल्ट है कि उसको समझ के उस बात को समझ के उस बात पे बात करे, ना कि वो मेरे, बिकॉज मुझे कोई जानता नहीं है, किसी को पता ही नहीं है।
Nobody knows what kind of a person I am. Nobody knows about it. तो अगर कोई खुद ही अपने तय कोई ओपिनियन बना ले, उस बात को मद्देनजर रख के जो कही गई है और बगैर उसका कॉन्टेक्स्ट जाने हुए और पस मंजर जाने हुए, तो ये फिर he needs to see a psychiatrist. एक ऐसे वक्त में जब नेपोटिज्म पे बहुत बात हो रही है, आपके अपने बेटे जावियार ने भी इंडस्ट्री में कदम रखा, आप उनके इस मूव को कैसे देखते हैं? सच्ची बात है तो आई नेवर वांटेड, और मैं बरमला हर दफ़ा ये कहता हूँ, लेकिन क्यों उसकी एक वजह ये है, मैंने तो चलो इस फील्ड में क्या कहते हैं कर लिया गुजारा, शायद मैं एक मुख्तलिफ टाइप का आदमी हूँ या मेरे हालात कुछ मुझे फोर्स कर रहे थे गुजारा करने पे, तो मैंने तो कर लिया। लेकिन मैंने इन इतने सालों में ये जान लिया कि हमारी इंडस्ट्री में सारे कीना लोग हैं, ठीक है, जो दिलों में बात रखते हैं। अगर आप किसी मजबूरी के तहत या किसी वजह से किसी को इनकार कर देते हैं किसी प्रोजेक्ट से, तो वो दिल में बिठा लेता है कि इसने मुझे इनकार किया था तो मैं इसके साथ दोबारा काम नहीं करूँगा। सो मैं ये समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दुश्मन इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी, ठीक है। जितने ज़्यादा दुश्मन हो अल्लाह पाक उतनी ही आपको कामयाबियाँ देता है। सो आई नेवर वांटेड माय सन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी रखने वाले लोगों में वो भी फंस जाए। लेकिन वो मुझे किसी ने कहा कि ये उसकी जीन्स में है और अगर उसकी किस्मत में है तो तुम नहीं हटा सकते, सो लेट हिम गो विद द फ्लो। सो आई जस्ट टोल्ड हिम, आई सेड के मेरी दुआ है कि लोग जो मुझसे बुग़्ज़ रखते हैं वो बुग़्ज़ तुमसे ना वो निकालें, तुम पे ना निकालें, लेकिन बदनसीबी है वो निकाल रहे हैं और तरह तरह से और मुख्तलिफ तरीक़ों से निकाल रहे हैं। सो ही इज़ फेसिंग द म्यूज़िक, मेरे ख्याल में ठोकरें खाएगा तो बहुत कुछ सीख जाएगा, और अच्छा इंसान और मुख्तलिफ इंसान और बड़ा इंसान बनने के लिए ठोकरें खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शोबिज़ में आने से पहले वाला नुमान एजाज मिल जाए तो आप उसे क्या मशवरा देंगे? इस काम में नहीं आना, ये अच्छे लोग नहीं है, ये तुम्हारी ही गर्दन काटते हैं, ये चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि हर अरूज को ज़वाल है, सूरज भी रोज़ सुबह निकलता है और शाम को ग़ुरूब हो जाता है, उसी से सीख लो। सो जितना टाइम तुम चमक रहे हो या नज़र आ रहे हो, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ फॉर अदर्स, बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।